हो जाए। What is prior? The world outside, the emotional world inside, are the M. M is the source. If there is no M, where is the emotion? So when you perceive through the eyes, you are perceiving the world which is outside. When with closed eyes, you are perceiving there is a world of thought, memory, emotion, past, future, expectation, assumption, and so on. But who is perceiving? What is the source of it? If there is no M, or call it I am, can it exist? The very presence of Mness creates all these phenomena. Then it gets identified with it and suffers. हो जाए? Or enjoys both. Actually, if you understand, then you will understand even the very enjoyment is a suffering. But there are two things. Either one enjoys or one suffers. So how it is functioning, that is what a seeker has to experiment, observe, watch, understand, and get free. Actually speaking, M is free already. But you are in a position that you don't feel that you are free. Actually speaking, it is an illusion. It is just a belief, it is just a thought that you found yourself in bondage. Actually not. This is just an illusion. Now a illusion can be cut with another illusion. Whatever you are doing, this dynamic or kundalini, or any sadhana given by any master, that too is an illusion. Ho jaye. No, I am telling you the secret which nobody told. That is why many people cannot understand me. Now, if they don't understand me, it is not my problem. It is their problem. Very simple. And I have no urge that you should. I had and I suffered a lot. This was in me was too much. Then why people don't? It was a great expectation in me that if you are with me, so near to me, so dear to me, why don't you understand? What is the problem with you?
So this was the expectation in me. Slowly, slowly, I became aware of my expectation and I dropped it. Until after that, I am more relaxed. If you understand, good. If you don't understand, even very good. What I understood, what I got from my master, in nutshell, I give you like this. Now it is up to you if you take or not. And understand what I am saying. You cannot find any contradiction that I am speaking, Osho has not spoken. But you have to find where it is. All you will find there. But I am giving you thus just a sense of it. It is an illusion. Like yesterday also I was giving this analogy that here is a light, okay? Here is a film. Here is a lens. And there is a screen and the projection is going on, right? Now when this light moves through the film and goes through the lens and get projected there, there you see a play of light and shade, isn't it? What actually you see, there is nothing. There is nothing there. It is just a play of light and shadow. Now, this light is corrupted by the film or by the lens or by the projection. It remains pure all the time. It is pure. सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण स्वच्छ पानी में पड़े कि गंदगी में पड़े, प्रकाश को कुछ होता है? वो शुद्ध है। इसलिए पुरानी भाषा में कहते हैं, पुरानी भाषा जरा, कोई भी भाषा जिसके हम यूज टू हो जाते हैं, उसका असर कम हो जाता है। हम समझते हैं कि हम जानते हैं, जानते वक्त कुछ नहीं। पुरानी भाषा में कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, कहते हैं ना, सुना होगा। आत्मा माने क्या? उसी को मैं एम कह रहा हूं। अब एम मेरा फिर भी तुम्हें समझ में आएगा। जब आत्मा बोलते हैं तो क्या समझ में आता है? एक शब्द है, बहुत पुराना। मैं जिसको एम कह रहा हूं वो आत्मा ही है, लेकिन आज की भाषा ताजा है, समझोगे तुम हो, ये तो तुम्हें पता है, होना एक सत्य है, लेकिन इस होने के प्रति सचेत नहीं हो, अचेत होने के कारण सब चीजें हो रही हैं। सब चीजों को होने के लिए एक डेड बॉडी है, उसमें और एक जीवित शरीर में क्या फर्क है? होना गायब हो गया, एम गायब हो गया। मृत देह में होना नहीं है, बराबर है। देह है, शरीर है, आंखें, नाक, कान, सब चीज है, लेकिन करंट नहीं है। वो करंट क्या है? करंट का कोई रूप नहीं होता। तुम यहां पर ट्यूब देखते हो और प्रकाश को भी देखते हो, लेकिन इस प्रकाश का, इस ट्यूब का जो आंतरिक सोर्स है वो दिखाई पड़ता है क्या? वो जो आंतरिक सोर्स है वही ट्यूब में भी है, वही पंखे में भी, वही टेप रिकॉर्डर में भी है, वो सब जगह पर वही है। वो एक है, ये रूप अनेक है।
होना जो है वो मेरा या तुम्हारा अलग कैसे हो सकता है? उस होने के कारण यहां भी विचार प्रक्रिया चलती है, देखना, सुनना, बोलना, उठना, सारा कार्य व्यापार चलता है। जैसे ये होना सक्रिय होता है, after a good sleep in the night, when you wake up in the morning and this emness becomes active, everything starts happening. Because everything starts happening, the very feeling with it comes that I am doing. Now, to say I am doing is not wrong. In language, you have to say. Why you have done this? I will hold you responsible. But deep down, you must know that whatsoever is being done, it is just happening. Nobody is doing. So emotion or thoughts or the world outside whatsoever is just a play of that emness. Now it is a little far away thing which I don't want to talk. If there is no emness, there will be no play. It is the very play of the emness जिसको हिंदू लीला कहते हैं ना। वो कहते हैं ये जगत जो है परमात्मा की लीला है, गंभीरता नहीं है, खेल नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है, पानी। एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा खेल रहा है, रेत से खेल रहा है, पानी से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है। कोई प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन नहीं। ये परमात्मा का खेल है, कोई प्रयोजन नहीं है। ये पूरी सृष्टि हो जाए। माइंड को लगता है ये कैसे हो सकता है? दिस इज द माइंड which raises all sort of question and then makes different philosophies. There are so many philosophies, very serious. That is how the philosophies are born, from a serious mind. Actually, it is a simple thing. अच्छा, मेरी बातें सुन के थोड़ा चौंकते हो कि नहीं? चौंकते हो? नहीं? It surprises you? बोलो। लोग ईमानदार भी नहीं होते, हाँ ना भी नहीं करते। Pardon? Yeah. If you are intelligent, you will. That is why I would like to work with intelligent people, not with common people, who bring such a stupid questions. Why you are playing this music? No. It means you don't want to grow. It means you are stuck there, you are prejudiced. It simply means there is no world more. Everything is just stuck here. Each day I want to take you more up, and you will feel that. With every action of mine, with music, with meditation, with my talk, with my presence, you just go on doing mechanical things. Mind is mechanical. It loves repetition. It loves what it knows. It don't want to get shocked and changed, and it doesn't want to grow. Then what is the purpose? That is why many people call me. If I say yes, I am coming,
I will not be spared even single day. That much demand is there. Even your Neelam wanted me to have tender retreat in her place. It is good that she has not called me yet. I trust your intelligence. You have intelligence. But somehow, that is the nature of mind, that it remains fanatic. Now we are Osho fanatic. Osho. Osho, I did this. What do you know, Baba? I am with Osho since 38 years. You know better than me. 21 years I was totally with him. Maybe 10% of his discourse I have not heard because I was conducting camp. Otherwise, all the time I was listening, direct. So you know better than me. Since 74, I am doing meditation camp. He appointed me. That on my behalf, now you have to conduct. So I started conducting. In my life, I have asked one time one question to Osho. When he told me that you have to conduct meditation camp, I asked him what I have to do. And his answer was, so what it means? Keep quiet. Let it happen. You are not the doer. I will do. Do you agree with me? That is how I translate. See, I was just new, 2, 3 years old, no experience of anything. And he is telling me, go and conduct meditation camp. I have only asked this in my whole life, that what I have to do. And his answer, with 50 people were sitting there, means keep quiet. Let it happen. It will happen. Isn't it? Since then, it starts happening. It went on happening. Many times, many people, which I never knew, were jealous of me. I was just unaware because I was busy with myself. I was not worried what people are doing, what is happening in the ashram, what Osho is doing, where our movement is going. No. I was just concerned with my meditation, with my sadhana. He told self-remembering, I will start. He will say, become aware of body movement, I will start. Like that. And whenever I will get chance, I will do 21 days silence. I did many. So means I was hungry of my sadhana. So many people complained that Chaitanya Bharati do this and do that. But Osho never said me anything that you have to do this and not this. What it means? See, he knew what I am, what I am going to do, I will be on the path or not, whether I will do things wrongs or right. He never gave me any instruction. And there, music spontaneously starts. I listen to some music and then I will feel that it should be kept here. And it will enhance the meditation. That is how slowly music developed. Since then, and he knew everything.
When I come after the camp, I will, that time it was uh, Lakshmi. I will tell Lakshmi everything, that this happened. One day Lakshmi called me and told me, I have complained about you, that you teach your techniques and not Osho techniques. I was surprised. I said, who told you? So she did not give me the name. I said, I do nothing like that. Which technique I am teaching, you please tell me. But she did not know anything. So I was sitting for 2 hours, she was talking, and then she left, I am sitting there. She even did not say, okay, you go. Again, after some time, she called me. And same problem. Then I asked which technique I am doing. She said, stop meditation. So I asked her, do you think I am so much capable that I can create these techniques? And this is my technique. It is told by Osho, and this is the book, and this is written. She kept silence. Now she was doing on her behalf, not on Osho behalf. Otherwise, Osho will tell me directly or indirectly that you do this or you don't do that. Nothing. Ultimately, he knew that I don't have personal interest to become a guru. He knew very well. I had none. Though these inner circle people blamed me like anything, they spread everywhere that I am trying to become a guru. I am not trying. I am. हो जाए. No, if somebody tells you that you are trying to become a woman, what it means? If I am a guru, I am a guru. Guru means what? A potential, a capacity, a seed. A mango seed is a mango seed. Isn't it? Why I should try? I'm not trying anything. Osho knew very well that I will withdraw. That is why he left a message for me. And those people did not give me that message for 2 years. When I just left the ashram, I was leaving. I told them I want to go somewhere. Now I am not giving anything to the commune, not taking anything from the commune. I think it is finished for me. So please allow me to go. Give me a leave. So they agreed, and then they gave me the message that we will not spare you. You have to conduct meditation camp. Osho has said this about you, that you send him. And that kept me this much. So now, once in a year for 10 days I do. I'm not greedy. That is why I have never made ashram or commune. Yes, I am always interested in individuals. Always. If they need any help and I can help, I help. And this is to just keep the promise with the master, because my master has said about me that you continue, so I am continuing. But I'm not greedy. The moment Osho left the body, now 1,001 people conducting meditation camps. हो जाए?
एनी डिम डेक डेरी, क्या बोलते हैं, क्या होता है? टॉम डिक एंड डेरी knows nothing, mechanically puts the cassette and ये खेल ऐसे ही रहने वाला। मैं ये समझ गया कि दुनिया में किसी को बदला नहीं जा सकता और भीड़ को तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। काहे के लिए सिर खपाई करनी? टाइम पास करना है तो मेरे को टाइम पास करना आता है, मैं सारा दिन बैठ के टीवी देखता हूं। तुम जब भी आओगे नहीं, तुम जब भी आओगे मेरे को दो काम करते हुए देखोगे, या तो मैं सिगरेट पी रहा हूं या मैं टीवी देख रहा हूं। फिर भी तुमको लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, गुरु हूं, तो तुम्हारी फिर ठीक है, वरना भागो। मेरे को कोई रस नहीं है तुम में। तुम आए नहीं कि खामखा मेरी स्पेस खराब करते हो। बैठा हूं आराम से, कुछ भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और टीवी देख देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूं। सब चीज करीब करीब वहीं से सीखी है, बाहर के जगह। ये आदमी है क्या चीज, कैसे इसकी मशीन काम करती है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाहरी कारण, उसके मूर्छित कारण, उसके अमूर्छित कारण, उसके भीतरी कारण, धीरे 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 घुस घुस के वो सब पकड़ा है। अब पकड़ लिया है। शुरू शुरू में तो बहुत मन होता था कि लोगों को बताएं, पर देखा कि लोगों को बताएं तो उनके कान बंद हो जाते हैं, तो काय के लिए बताना। तो धीरे धीरे समझ में आ गया, तो शांत हो गया, चुप हो गया। अब कभी कोई बात उठाता है, पूछता है, जितनी उसके मतलब की, उसकी समस्या वो जहां पर है उतनी बात करता हूं। लेकिन अगर तुम्हें मूल बात पता हो, जो कि नहीं पता होती, अब तुम चक्रों पर काम किए चले जा रहे हो, सेंटरिंग पे काम किए जा रहे हो, ये किए जा रहे हो, वो किया जा रहा है, और तुमको पता ही नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो। करो, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर पता हो पहले से कि मूल बात क्या है, तो फिर सारे गुण धर्म बदल जाएंगे चीजों के। करना तो पड़ेगा, स्थिति ऐसी है कि करना पड़ेगा। ये डायनेमिक वायनेमिक करना पड़ेगा। मैं कोई इसके अगेंस्ट नहीं हूं, बल्कि डायनेमिक को मैंने और सुंदर किया। 5वें चरण में तुम नाचते हो, खत्म हो गया ना खेल। मैं बाद में तुमको थोड़ा सा कुछ और सुनाता हूं, थोड़ा कीर्तन। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खाना खा लिया फिर मिठाई खाई। नहीं, खाना अधूरा है अगर बाद में मिठाई नहीं खाई हो तो ओशो ने तुम्हें खाना खिलाया, मैं तुमको मिठाई भी खिला देता हूं साथ में। इसमें गलत क्या है? कोई विधि चेंज नहीं की है। अब सारा काम वो खुद तो कर नहीं सकते थे ना बाबा। उन्होंने इतनी भीड़, इतनी जमात इकट्ठी की है, इतने प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे किए, तो वो भी तो कुछ करेंगे ना, कुछ ऐड करेंगे कि बस उतना ही रहेगा। तो मैंने कुछ घटाया नहीं, जोड़ा है, और जो जोड़ा है वो उसको सुंदर करता है, गड़बड़ नहीं करता। डायनेमिक करते हो, शाम को कुंडलनी करते हो, उसमें भी पीछे मैंने एक प्रार्थना जोड़ देता हूं, क्योंकि ध्यान करने के बाद हृदय प्रार्थना पूर्ण होना चाहिए। ये ओशो ने जगह जगह कहा है। नहीं तो ध्यान जो है वो तुम्हें गंभीर कर देता है। जब गंभीर कर देता है
तो ऊर्जा जो है फिर बर्फ हो जाती है, फिर जम जाती है। तो प्रभावमान रहे, लाइट रहे, इसलिए तुम हल्के हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रार्थना पूर्ण हो जाओ, सारी ऊर्जा हृदय में आ जाए, ये उसका मूल है। जो भी करवाया जाता है, एक एक बात के पीछे पूरी सोच है, पूरी दृष्टि है, ऐसे ही नहीं है। अभी नटराज, तो नटराज में कल हमने एक म्यूजिक बजाया जो कि आश्रम का नहीं है, तो आश्रम का ही म्यूजिक बजता रहेगा करोड़ों साल तक। अब ये धंधा तो चलेगा, वही एक म्यूजिक बजेगा क्या? और म्यूजिक का मतलब क्या? नाचना। नटराज में जो भी म्यूजिक है, उसमें यह है कि तुम हल्के हल्के ऐसे नाचो कि तुम नाच में लवलीन होते जाओ, डूबते जाओ, एकाकार। इतने मकसद है ना, कि कुछ और तो और कोई दूसरा म्यूजिक नहीं हो सकता क्या? और तुमको पता है, अब वो तो लोग जो आश्रम में बैठे हो तो गधे नंबर 1 है, हो जाए। और मैं मुंह पे कहने को तैयार हूं। वो मेरे को देखते हैं ना तो मुंह इधर कर लेते हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने उनके मुंह पर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओशो ने ऐसा नहीं कहा। ये तुम कह रहे हो क्योंकि तुम लोगों को चलाना चाहते हो, क्योंकि तुम अब सारी चीज को गड़बड़ करना चाहते हो। ये तब मैंने कहा था। नीलम कीर्ति भी उस वक्त मेरे अगेंस्ट, पेपर उनके हाथ में था, सत्ता उनके हाथ में थी, मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखते रहे। और मैंने 8 साल पहले कहा था कि तुमको ये एक दिन निकाल के बाहर फेंक देंगे, और वही किया उन्होंने। उन्होंने बाहर फेंक दिया। मेरे को लोग डराते थे, मेरे जो मित्र हैं, कि ये बहुत हरामी लोग हैं, बदमाश लोग हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, ये आपको रातों रात मरवा देंगे, आप मत बोलो। मैंने ओशो के फोटोग्राफ की एग्जीबिशन बनाई है, फोटोग्राफ मेरा लिया हुआ है। ओशो ने मेरे को कहा था कि एग्जीबिशन बनाओ, लोगों को दिखाओ। तो मौका ऐसा लगा कि जब वो शरीर उनका छूट गया, तब फुर्सत मिली तो ये बनाई। तब कहते थे कि आप ओशो की फोटो नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? आश्रम का कॉपीराइट है। फिर मैंने ओशो ऊर्जा म्यूजिक बनाया, तो ओशो का नाम तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने वहां भी किया, वहां भी किया, वहां भी किया। ओशो ध्यान लीला फाउंडेशन भी बनाया है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरे को कुछ कहे। मैंने कहा मरवा डालेंगे ना, अब काम तो हो गया, एक ही चीज बाकी बची है, उसको देख लेंगे। अच्छा, मृत्यु होती है कि नहीं होती है, क्या होती है, लेट इट हैपन, सो व्हाट। बाकी तो ओशो ने सब दिखा दिया, कुछ बचा नहीं है, कोई अधूरी चीज बची नहीं है, तो चलो यही देख लेते हैं। और बिना उसकी मर्जी के, इनके बाप की ताकत है कि मेरे को छू के बताए। उसकी मर्जी अगर हो तो ही ये संभव है, और अगर उसकी मर्जी ऐसे ही तो लेट इट हैपन। तो मैं तो कभी डरा वरा नहीं।
और ओशो को सुन सुन के इतनी बात भी अगर समझ में नहीं आई कि एक अकेला व्यक्ति सारी दुनिया को चुनौती देता है, सारी दुनिया के खिलाफ बोलता है, ऐसे खिलाफ नहीं बोलता, मूढ़ताओं के खिलाफ, गलतियों के खिलाफ बोलता है। तुम 21 साल 25 साल उनके चरणों में बैठते हो, तो फिर तुमने सीखा क्या, फिर तुमने समझा क्या? ओशो का मतलब, जिसने जो सत्य जाना कम से कम उसको कहे तो मैंने कहा, किसी ने नहीं सुना मत सुना, मेरे को तो यह तसल्ली है कि मैंने कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया। तो मेरे प्यारे, ये जगत जब आप सुन लेते हो कि ये खेल है, तो ये उन लोगों का अनुभव है जो इसमें गहरे गए, जिन्होंने इसको अनुभव किया है। तुमने अनुभव नहीं किया, तुम्हें अनुभव करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये लीला घट कैसे रही है, ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। और ये संभव नहीं हो पाता बिना किसी के कांस्टेंट गाइड के। अब मेरी मुसीबत ये है कि मैं गाइड होने को तैयार नहीं हूं। मेरा कोई लोभ नहीं है कि तुम मुझे अपना गाइड बनाओ या मानो, लेकिन ये सत्य है कि बिना गाइड के होता नहीं है। क्यों? मैं ये देखता हूं कि अगर मैं ओशो के पास 21 साल लगातार नहीं होता, तो आज जिस स्थिति में मैं हूं, तो क्या मैं होता? और अगर मुझे जरूरत थी, तो ये एक जरूरत है। अरे बात समझ। तो मेरे प्यारे, विधि कर लेना, कोई भी विधि कर लेना जो बताई गई है, कुशलता से, लगन से, एक बात है। लेकिन वो विधि जो है अपने आप में ध्येय नहीं है, ध्येय कुछ और है। और ध्येय पर अगर ध्यान ना रहा तो कुछ अर्थ नहीं रहेगा, लोग विधियों में खो गए। मैं रोता हूं, मैकेनिकली लोग करते रहते हैं। अभी ओशो ने एक जगह पर कहा है कि कोई भी विधि तभी काम करती है जब उसको, उस विधि को देने वाला सदगुरु जीवित होता है। सदगुरु के जाने के साथ ही वो विधि मृत हो जाती है। सुना है ये? सुना है? ये गुरुजेफ के कहीं रेफरेंस में बोल रहे थे, किसी बुक में है, मैं तो ये सब याद नहीं रखता। उन्होंने कहा कि फिर तुम डायनेमिक करते रहना, लेकिन होगा कुछ नहीं। सदगुरु की ये पहचान है कि वो सच सच क्या है वो तुमको बोल देगा। अब तुम सुनना चाहते हो, नहीं सुनना चाहते हो, मानना चाहते हो, नहीं मानना चाहते हो, ये तुम पर है। उन्होंने बोल दिया है हकीकत, और एक नहीं, सारी हकीकतें बोली हुई हैं, वो उनकी वाणी में मौजूद है। और वही हो रहा है। लोग मैकेनिकली विधि करते रहते हैं। देखो प्यारे, मैं एक बात कहता हूं, ध्यान क्या है? ध्यान है अपने अंतर में प्रकाश करना, अपने अंतर को प्रकाशित करना। बराबर? जैसे जैसे ध्यान करते हो, तुम्हारा बोध प्रगाढ़ होता है, भीतर बोध बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, बराबर? चैतन्य बढ़ता है। समझो, ये घर है, ये कमरा है, 10 दिन तक ये बंद था, 10 दिन के बाद इसको खोला। रात का समय, दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं,
तो पहला काम क्या करोगे? लाइट जलाओगे। लेकिन लाइट जलाने से कमरे की सफाई तो नहीं हो जाएगी। लाइट जलाना एक काम है, सफाई करना अलग काम है। ये बात समझ में आती है? तो लोग लाइट तो जलाते रहते हैं, सफाई नहीं करते। हो जाए, शायद हंसने से मेरी बात समझ में आ जाए। कुछ लोग समझते हैं कि लाइट को ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बस उतना ही काफी है। रोज ऑन ऑफ कर लिया। लाइट पहली शर्त है, चाहिए, नो डाउट। लेकिन बस लाइट को ही ऑन ऑफ किए जा रहे हैं, बाकी सारी मूर्ताएं वैसी की वैसी कायम है। ओशो को मिलने से भी पहले तुम मूड थे और ओशो को मिलने के बाद ही तुम मूड हो। ओशो को मिलने से तुम बुद्धिमान नहीं हो जाते। बुद्धिमानी एक अलग यात्रा है जो तुम्हें करनी पड़ती है। वो एक अलग अंग है, एक अलग उपाय है। सफाई करनी पड़ेगी। और ये कुछ ऐसा मामला है कि इसमें सतत गाइड चाहिए। ये मैंने ओशो के पास रह के जाना। सतत गाइड भी काफी नहीं है, तो तुम्हारी अटूट लगन, प्यास, श्रद्धा, समर्पण का भाव, ये सारे अलग अलग फैक्टर, अलग अलग कंटेंट चाहिए, तो जाके कहीं बात बनती है। नहीं तो ऊपर ऊपर एक ख्याल है कि हम ओशाइट्स हैं, उतनी फैनेटिक है, उतनी मूड है जितने कोई और। छोटी छोटी बात, अजीब अजीब बात करते हैं। अभी ओशो ने मेरे को शिविर लेने भेजा। अब जब मैं शिविर कर रहा हूं तो ध्यान करते करते तुम ऐसी भाव स्थिति में आ जाते हो कि जहां तुम्हारा चरण छूने का मन करता है, तुम झुकना चाहते हो। और अगर तुम इगोइस्ट नहीं हो, कंडीशन नहीं हो, तो तुम झुकोगे ही। तो लोग आके पांव छूते हैं। अब एक तरीका तो यह है कि मैं कहूं कि पांव मत छुओ, और एक तरीका यह है कि आओ मेरे पांव छुओ, तुमको पांव छूने चाहिए। दो बातें हो सकती हैं, हो सकती है ना। ओशो को कभी किसी ने पूछा कि लोग आपके पांव क्यों छूते हैं, तो ओशो ने कहा यह उनकी समस्या है। मैं किसी को नहीं कहता कि आओ मेरे पांव छुओ। अब उनके मन में ये भाव उठ जाता है तो मैं उनके भाव को हर्ट नहीं करता, उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं करता। अगर उनको अच्छा लगता है और लाइट फील करते हैं तो दैट्स ऑल। अब ये मैंने सुन लिया तो ये एटीट्यूड एडॉप्ट कर लिया। अब लोग अगर मेरे पांव छू रहे हैं तो तुम लोगों में जाके प्रचार करना चालू कर दो कि मैं गुरु बन रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है? अरे तुम्हारे में अगर इतनी पावर है, इतनी तुमको जेलिसी होती है तो तुम बनो ना। तुम्हें में तो, तुम्हारे में तो क्षमता है नहीं, और दूसरे को तुम डिस्कार्ड कर रहे हो जिसकी रुचि भी नहीं है। मेरे कोई रुचि नहीं है। कई जगह पर उन्होंने कैंप गड़बड़ करवाए, ये आप लोगों के इनर सर्कल वालों कुछ कर नहीं सके, कैसे करते हैं। और ये सब चीज, विरोध या इस तरह की विपरीत स्थितियां
अच्छी होती है। थोड़ा कंट्रास्ट मिलता है, थोड़ी बात आगे बढ़ती है, तो कुल मिला के तो शुभ ही होता है। अगर चीज समझ में आती हो तो कुल मिला के शुभ ही होता है। तो हमारी बात शुरू हुई थी कि इमोशन जब उठता है तो इमोशन प्रोमिनेंट हो जाता है, होना विस्मृत हो जाता है। ठीक उल्टा करना है कि इमोशन हो, कि विचार हो, कि स्मृति हो, वो प्रोमिनेंस ना ले पाए और एमनेस को प्रोमिनेंस मिले। तो जैसे जैसे एमनेस को प्रोमिनेंस मिलेगा, एमनेस में तुम रुकने लगोगे, सारे भेद खुलने लगेंगे, खेल समझ में आने लगेगा कि ये तादात्म्य कैसे होता है और तादात्म्य ना हो ये कैसे होता है, और तादात्म्य नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब समझ में आने लगेगा। तो ध्यान जरूर करते रहो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी समझ का तल बढ़े। विचारों को इकट्ठा कर लो, ओशो को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के इकट्ठा कर लो कि ओशो ने ये कहा, ओशो ने वो कहा। नहीं, समझो, गहरे जाओ, अपने भीतर उतरो, पूरी प्रोसेस को समझो, तो धीरे धीरे गांठ खुलती चली जाएगी। ठीक है।